और SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का ऑर्डर देखें SN1 की तरफ तो क्या होगा बताओ सर? हाँ श्री बोलो सबसे ज्यादा बोलो सर शहबाज। टर्सरी में SN1 मैकेनिज्म होगा। SN1 मैकेनिज्म की तरफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गया कि नहीं? यानी टर्सरी विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, फिर उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यही है कि नहीं? और अगर हम SN2 की बात करें तो प्राइमरी विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी विल बी द लेस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म की तरफ जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जितना कम स्पेस होता है कार्बन के पास, हाँ बोलो भाई राहुल कुछ कहना चाह रहे हो? जितना कम स्पेस होता है कार्बन के हायर विल बी द रिएक्टिविटी, यानी प्राइमरी में बैक साइड से अटैक करने के लिए स्पेस सबसे ज्यादा होता है, सो दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। सेकेंडरी में कम स्पेस होता है और टर्सरी में और भी कम स्पेस होता है, सो देयर शुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस फ्रॉम बैक साइड टू अटैक। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म डिक्रीजेस। आपने किया था कि SN1 मैकेनिज्म में पार्शियल वेस्टर्नाइजेशन होता है, लेकिन SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको कि वाल्टन इन्वर्जन कहेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। ओके, better living group weak nucleophile will favor the SN1 mechanism, better living group strong nucleophile will favor SN2 mechanism। nucleophile always better ही होना चाहिए, RH से RCl RBr और RI की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी SN1 हो या SN2 दोनों की तरफ ही इंक्रीज करती है। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। One by one different reagents are there which can react with alkyl halides. We can say the alkyl halides are the most reactive towards nucleophilic substitution reactions. We can say alkyl halides undergo various types of nucleophilic substitution reactions. First, reaction with NaOH, sodium hydroxide, aqueous solution of NaOH, या aqueous solution of KOH ले लें। Second, the reaction with KCl. Third, the reaction with AgCl और KCl लिख लो या फिर NaCl लिख लो, सोडियम साइनाइड एक ही बात है। Fourth, the reaction with KNO2 silver nitrite या सोडियम नाइट्राइट। Fifth, the reaction with AgNO2 silver nitrite। Sixth, the reaction with ROH alcohols, R O negative Na positive कर देता हूँ सोडियम एल्कोक्साइड। Seventh, the reaction with RSH thiols। Eighth, we shall discuss about the reaction with NH3 ammonia, and ninth, we can say the reaction with CH C negative Na positive, यानी सोडियम acetyl। These are the various reagents which can react with alkyl halides. Reaction with NaOH, KCl, AgCl, KNO2, AgNO2, RO negative, Na positive, RSH, ammonia, and sodium acetyl।
So first of all, we shall discuss about the reaction with NaOH or KOH, potassium hydroxide or sodium hydroxide. So here we can say reaction with NaOH or KOH. So RH alkyl halide when treated with sodium hydroxide NaOH के aqueous solution के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, NaOH can dissociate to give Na positive plus OH negative. और सिंपल सा कांसेप्ट आपको पता है कि X ग्रुप will withdraw the electron और X ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन withdraw करेगा तो OH नेगेटिव यहां पर अटैक कर देगा and you will get ROH. अल्कोहल बन गया आपके पास और Na positive और X negative के लिए removal of what NaX. Alcohols will be formed. Yani when alkyl halides are treated with aqueous solution of NaOH, there will be the formation of alcohol. Easy concept, very simple reaction. For example, you are having CH3, CH2, Cl, chloroethane, और chloroethane को aqueous solution of NaOH के साथ react करेंगे. It will be dissociated to give Na positive plus OH negative. सारा mechanism आप कर चुके हो. So how the reaction will take place? Cl group electron withdraw करेगा, definitely the OH negative will attack on CH2, and you will get CH3, CH2, OH, ethyl alcohol. Plus there will be the removal of aqueous solution. अगर इसमें कोई कायल सेंटर नहीं है, कोई कायल सेंटर नहीं है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की अगर हम बात करें तो रेसिमाइजेशन या इन्वर्सन का कोई कांसेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कांसेप्ट ही नहीं. ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से करो या SN2 मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर OH लगेगा तो वही बात है, इधर लगेगा तो वही बात. ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ. समझ रहे हो ना? देख पा रहे हो भाई, समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? थंब इंप्रेशन दो अगर समझ पा रहे हो, आ रहा है दिमाग में तो प्लीज थंब इंप्रेशन देके. अरे सुन पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर. सुन रहे हो ना? इसी तरह से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग CH3, CH2, CHCl, CH3. This compound is known as 2-chlorobutane. ये कंपाउंड 2-chlorobutane है, और 2-chlorobutane को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल बी डिसोसिएटेड टू गिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ऐसे डिसोसिएट होगा. अब देखो, नाउ द कांसेप्ट इज दैट ये कंपाउंड बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है. दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर. ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, एक्टिव होगा सर. ऑप्टिकली एक्टिव है ना? अगर ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो क्या बनेगा, और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो क्या बनेगा. SN1 मैकेनिज्म को फेवर करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यानी नेट द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ले सकता हूं DML. यही एक्सप्लेन कर रहा है. ये ना भी लिखने को आपके दिमाग में होना चाहिए कि DML का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म. और SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, CH यहां से हटेगा तो, और सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल इससे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. देखो दिमाग में रखना कि SN1 मैकेनिज्म होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बोली है. रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखो यहां से CH हटेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर शिफ्ट होगा तो भी सेकेंडरी रहेगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही बन रहा है, उसके स्टेबल बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होंगे. लेकिन अब बात यह है कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा तो जो OH नेगेटिव है वो सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी. रेसिनिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं, यानी आपके पास बनेगा CH3, CH2, CHOH. तो OH सेम साइड से भी लग सकता है और बैक साइड से भी. ये ब्यूटेन टोल हो गया. और बताया था आपको कि इन्वर्सन भी होता है और एजिटेशन भी होता है SN1 में.
बनेगा, यानी प्लस माइनस ब्यूटेन 2 और बनेगा कि नहीं। There will be the rationalization in SN1 mechanism. That was, मान लो ये प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन है, R नोमेनक्लेचर है, टेक्स्ट हो ये, तो यहाँ पर तो दोनों का मिक्सचर समझ में आ रहा है भाई। SN1 में rationalization will take place और यहाँ पर बिल्कुल इन्वर्जन होगा, ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो का। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल टेक प्लेस, CH3CH2 CH CS3OH, but it should be minus butane 2O, just opposite configuration will be there। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं। So that is the concept। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अगर रिएक्ट करेंगे OH के साथ तो फिर SN1 से हो रहा है रिएक्शन या SN2 से हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट कर रहा है, there will be the formation of reaction mixture, क्या नाम है, racemic mixture of alcohol, और SN2 से तो फिर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर भाई। अब देखो बात यहाँ पर क्लियर ये हो रही है कि अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH या एक्वस NaOH वाटर में डिसॉल्व करके अगर डालेंगे तो अल्कोहल्स बनेंगे। लेट अस कंसीडर यू आर हैविंग CH3 CH2 and it is the Br, और इसको अगर हम एक्वस NaOH या KOH में लेंगे की बात है तो सिंपल सा कांसेप्ट है, तो आपको साफ ही दिख रहा है कि क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br की जगह लग गया OH। Now the concept is that कि जो alcohols बनते हैं ना, they can be oxidized, alcohols can be oxidized into aldehydes as well as carboxylic acids। CH3CH2OH है तो अगर आप इसमें KMnO4 ऐड करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या इसके बजाय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो एसिडिक मीडियम। Either of these two you can take the oxidizing agent, दोनों में से कोई भी oxidizing agent ले सकते हो। You can take any type of the oxidizing agent, that will be potassium permanganate or potassium dichromate। So we can say अगर potassium permanganate और potassium dichromate कोई भी oxidizing agent लेंगे, alcohol will be oxidized into carboxylic acid, यानी जो CH2OH group है ना, that will be oxidized into what, COOH, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर अल्कोहल के अंदर PCC डाल देंगे, pyridinium chlorochromate, then what will happen, CH2OH group will be oxidized into CHO group, CH3CH2 group will be formed। तो ये कांसेप्ट है अल्कोहल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। देखो कोई भी अल्कोहल है RCH2, ध्यान से देखना प्लीज, OH ऑक्सीडेशन अगर होता है अल्कोहल का, ये मैंने नेसेंट ऑक्सीजन बना दिया, ये भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम है या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण देखो ये कौन यहाँ पे, और फिर इस कार्बन का जो अल्फा कार्बन, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाद तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलके H2 और ऑक्सीजन मिलके H2O कार्बन, और ये आपके पास बन गया RC≡O NH एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ना, तो दिस ऑक्सीजन विल गो इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड यू विल गेट RC≡O and OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके पास। So we can say कि alcohol first will be oxidized into aldehyde and that will be further oxidized to give the carboxylic acid। ये अपने आप होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ तक कब जाएगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ले होगा, KMnO4 in presence of acidic medium या K2Cr2O7 in presence of acidic medium, और एसिडिक मीडियम भी H+O4 होता है यहाँ पे। तो देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड, और फिर अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन जो PCC है ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, तो पार्शियल से फिर नहीं करेगा। अगर मान लो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है, मतलब अल्कोहल कार्बन पे 2 एल्काइल और इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे और ये H इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलके H2 और ये O, H2O का रिमूवल, और ये आपके पास बन रहा है RCr≡O।
क्या बना बताओ, ये कीटोन बना के नहीं, यानी सेकेंडरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन विल गिव द एल्डिहाइड। अगर कीटोन जो बने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे अल्टीमेट। यहां से क्लीवेज होगा, इस आर के बीच में से और कार्बन के बीच में से क्लीवेज कर लो, या इसके बीच में से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मोल तो यहां से बनेगा और एक इससे बनेगा, 2 मोल बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ओवरऑल कांसेप्ट ये हुआ कि कोई भी अल्कोहल हो, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन। अल्कोहल पे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं एल्डिहाइड। देखो जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हो रहा है कन्वर्जन्स का। रिएजेंट्स की तरह याद होते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा। कांसेप्ट ये क्रिएट हो रहा है कि अल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो इथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड पे जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर जाना है तो पहले बीच में अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अगर आपको अल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड पे जाना है या कीटोन पे जाना है तो पहले बीच में अल्कोहल बनाना पड़ेगा। सो अल्कोहल विल बी द इंटरमीडिएट स्टेप टू गो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्काइल हैलाइड टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। लेट अस कंसीडर, यू आर रेडी, अब क्लियरली मैं बताऊं आपको। लेट अस कंसीडर आपके पास RCH2OH है, अल्फा कार्बन के ऊपर देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो इट इज द प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करोगे KMnO4 in presence of acidic medium, yes it will be completely oxidized, और पीछे वाले ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो CH2OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा, and you will get RCOOH, that's all. Carboxylic acid, same number of carbon atoms will retain and carboxylic acid will be formed. And another we can say कि if PCC का एडिशन अगर कर देंगे ना तो R और CH2OH ग्रुप जो है that will be oxidized into CHOL. So complete oxidation will give carboxylic acid. Partial oxidation will give aldehyde. And PCC means to say what? Pyridinium chlorochromate. Yes, one of the important oxidizing agent to cause partial oxidation of alcohols to aldehydes. Pyridinium chlorochromate. Pyridine definitely the benzene ring containing one nitrogen. ये pyridine है देखो। अगर हम इसको HCl के कांटेक्ट में लेके आए तो बेसिक होने के कारण अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा नाइट्रोजन H पॉजिटिव, और ये बन गया लोन पेयर डोनेट करने के कारण NH। लोन पेयर डोनेट कर दिया पॉजिटिव चार्ज, तो pyridinium हो गया देखिए, Cl नेगेटिव, pyridinium chlorochromate का मतलब CrO3। यस, इट इज द pyridinium chlorochromate। एक्चुअली pyridinium तो यहाँ पर सॉल्वेंट का ही काम कर रहा है, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, तो ये pyridinium chlorochromate हो गया मेरा स्ट्रक्चर। आर यू एबल टू हियर मी? वीडियो दिखाई दे रहा है क्लियरली? हम इंप्रेशन देके प्लीज बताओ सही क्लियर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? अनम्यूट करके बता दो अपने आप को। गुड। तो दिमाग में क्रिएट हुआ कि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, they will create the complete oxidation of alcohols to carboxylic acid, और PCC partial oxidation करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल का कांसेप्ट हुआ। अगर नोट कर लेना भाई प्लीज, अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लें अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर लें, अल्फा कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप हो गए सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 in presence of acidic medium, what will happen? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्लियर है? PCC डालोगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन देखो अब पार्शियल पहले अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट पता है ना, और ये मैं CH3 लगा देता हूं यहां पर ना क्लियरली,
एल्काइल ग्रुप पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। सेकेंडरी अल्कोहल दो अल्फा कार्बन के सॉरी अल्फा कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप हो गए सेकेंडरी अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम हुआ 1 2 3 यानी प्रोपेन 2। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम, कन्वर्जन्स में कॉमन नेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो एक H यहां से और एक H यहां से, दिमाग में क्रिएट कर लो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो नेक्स्ट हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से रिमूव होना है, और दो एटम रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। एटम रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और अगर एटम ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड कंज्यूम होगा। यहां पर रिमूव कर रहे हो तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड। यस, और दो हाइड्रोजन और इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया उसको लेके H2O कर दिया। ये जो कंपाउंड आपके पास बना ये एसीटोन बन गया, द स्मॉलेस्ट कीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। S आइसोप्रोपाइल अल्कोहल will undergo partial oxidation to give acetone। इस केस में भी पहले तो यही बनेगा, लेकिन फर्दर क्या होगा हमें देखो पहले यही लिखा हुआ आपके पास CH3 ये तो बनना ही बनना है, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विल फर्दर ऑक्सीडाइज द कीटोन। तो अब क्या होगा कि C डबल बॉन्ड के बीच में और एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है इधर या फिर इधर, दोनों में से किसी भी तरफ CH हो जाएगा। इधर कितने कार्बन है भाई 1 2 3 सॉरी दो ही कार्बन है 1 and 2, सो दो कार्बन है इस तरफ, ये देखो इस तरफ दो ही कार्बन है तो यहां पर बनेगा CH3COH इथेनोइक एसिड, और इधर एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड HCOH। दो मोल बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। The cleavage will take place from alkyl group and carbon bond। तो एक alkyl group कार्बन एक रह गया तो फॉर्मिक एसिड दो कार्बन रह जाते थे, इथेनोइक एसिड इधर दो कार्बन रह गए तो इथेनोइक एसिड तीन होते तो प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां पर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट हुआ ये बना, ठीक है। अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है ये हमने आगे भी करना है अल्कोहल में और यहां भी करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बार-बार रिएक्शंस रिपीट होती जाएंगी। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। R C R एंड R, और R की बजाय मैं CH3 ग्रुप ही लिख देता हूं, CH3 एंड OH। अगर हम इसमें PCC का एडिशन कर दें तो एक H ऑक्सीजन से तो नेक्स्ट H कार्बन से, और इस कार्बन के ऊपर तो H है ही नहीं, बोलो तो H है ही नहीं तो फिर हटेगा क्या? मतलब PCC की प्रेजेंस में टर्सरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। अगर आपको कोई ये कह दे कि देयर इज एन अल्कोहल, एक अल्कोहल है व्हिच इज इनर्ट टुवर्ड्स PCC, कोई अल्कोहल है जो PCC की तरफ इनर्ट है, इसका मतलब 100% वो टर्सरी अल्कोहल, इट इज द टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल जो है वो इनर्ट होते हैं PCC की तरफ। अगर इसमें हम KMnO4 डाल देंगे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन तो यहां पर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर H नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन की बजाय यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी H2O का H2SO4 ये डिहाइड्रेशन कर देगा अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन कैसे? देखो अल्फा कार्बन के ऊपर जो ये OH है ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन तीनों में से कोई भी अल्काइल ग्रुप अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड को डोनेट कर देगा। यहां पर जैसे ये CH है तो ये हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यानी you will get CH2 double bond C and it is CH3. Yes, the compound will be known as 2-methyl-propene. So तीनों अल्कोहल एक्सप्लेन कर दिए मैंने आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। एक बार रिवाइज करें तो देखो प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे PCC की तरफ, PCC की हेल्प से एल्डिहाइड बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे PCC की हेल्प से कीटोन्स बनेंगे। टर्सरी अल्कोहल्स PCC की तरफ इनर्ट होते हैं,
cannot be oxidized. कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 या K2Cr7 की हेल्प से, तो 2 मोल बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और टर्सरी अल्कोहल्स जो है वो ऑक्सीडाइज होने की बजाय KMnO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर को लॉस करके एल्कीन बनते हैं। क्लियर है भाई? आई थिंक वेरी सिंपल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड, और इथाइल आयोडाइड को aqueous NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, that can dissociate to give Na positive plus OH negative, and if I negative will withdraw the electron, OH negative will attack here and you will get CH3CH2OH ethyl alcohol. Is it clear? अब इथाइल अल्कोहल जो बना, इसमें अगर हम PCC डाल दें तो क्या बनेगा? CH2OH group will be oxidized. 2 कोई भी बोलना चाहे प्लीज अनम्यूट करके बता दो अपने आप को, बोलो क्या बनेगा? यह सुनाई नहीं दे रहा क्या? अनम्यूट करो प्लीज अपने आप को एक बार, अनम्यूट करो भाई ये सभी अपने आप को एक बार। आयुष, मोहित, सारे बताओ क्या बनेगा? शाबाश। CH3C डबल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड बनेगा ना, यही बनेगा एसिटाल्डिहाइड और इथाइल आयोडाइड, यानी कन्वर्जन हो गया। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड टू एसिटाल्डिहाइड? तो पहले अल्कोहल पे जाना पड़ेगा, और अगर हम इसी कंपाउंड में KMnO4 डाल देते एसिडिक मीडियम में तो बताओ क्या बनेगा? CH3 और ये ग्रुप कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? COH कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड बना के नहीं, दैट इज नोन एज एन एसिडिक एसिड। कर सकते हैं? So definitely very simple कि अल्काइल हाइड्राइड सब्स्टिट्यूट विद NaOH और KOH अल्कोहल्स बनेंगे, जिनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। The second reaction with KCl potassium cyanide, you are having RCH2X alkyl halide है, और alkyl halide को अगर पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें, KCl को अल्कोहल में डिसॉल्व कर लो या वाटर में, एक ही बात है, डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव में। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है यहाँ पे, तो पोलर सॉल्वेंट है, सो डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता होगा, और नेगेटिव चार्ज का। तो X अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन अपने लोन तरफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू CH2 पे अटैक कर देगा कि नहीं, और ये बनेगा RCH2Cl, एल्काइल साइनाइड बन गया। कोई मुझे बता सकता है और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे? कोई भी बताए प्लीज, एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड भी बनेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव इज व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड, शाबाश। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, सो इट कैन अटैक फ्रॉम कार्बन एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन से अटैक करने की टेंडेंसी कम रहेगी, क्योंकि साइज भी छोटा है, नेगेटिव चार्ज जस्ट भी कम है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो नाइट्रोजन भी अटैक करेगा, लेकिन RCH2 अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो NC। लेकिन ये जो कंपाउंड बना ये अल्काइल साइनाइड बना, लेकिन ये है ये जो कंपाउंड बनेगा वो ट्रेसेस में बनेगा, यानी बहुत बहुत कम परसेंटेज। साइड प्रोडक्ट दिखाओ तो दिखा दो, वरना कोई जरूरी तो है नहीं है। K पॉजिटिव और X नेगेटिव के साइड प्रोडक्ट आपको पता है KSO। So we can say सबसे पहला कांसेप्ट तो यही हो गया that when alkyl halides यानी RX are treated
विद अल्कोहलिक KCl, अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्ट करेंगे। A mixture of alkyl cyanide and isocyanide, जो कि ट्रेसेस में होता है, इस फॉर्म। तो alkyl cyanide और isocyanide का मिक्सचर बन जाएगा। क्यों? रीजन इज दैट बिकॉज Cn negative is an ambident nucleophile, so can attack from carbon atom as well as नाइट्रोजन। इसलिए कार्बन एटम से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। इसलिए साइनाइड के साथ साथ आइसोसाइनाइड भी बनेगा, लेकिन नेचर प्रोडक्ट साइनाइड बनता है, वो ट्रेसिस में बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो साइड है वो वीक न्यूक्लियोफिलिक साइड है। सो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन को अगर हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। Cl ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, Cl नेगेटिव विल अटैक किया, सो इट विल बी CH3 CH2 एंड Cn, और K पॉजिटिव और Cl मिलके देयर विल बी द रिमूवल ऑफ KC। 3 कार्बन एटम्स आर देयर, 3 कार्बन एटम क्रिएट हो गए। बताओ क्या कंपाउंड बना, नाम क्या हुआ इसका? ये तो क्लोरोइथेन था, लेकिन साइनाइड में तो साइनाइड के कार्बन से करोगे ना नहीं, 1 2 3 3 कार्बन हो गए प्रोपेन, और साइनाइड का सफिक्स नाइट्रिल होता है कि नहीं बताओ? प्रोपेन नाइट्रिल। कितने कार्बन थे क्लोरोइथेन में, प्लीज बताएं। अनम्यूट करके बोलो प्लीज, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? अनम्यूट करें प्लीज। नहीं करना चाह रहे अनम्यूट, बोलना नहीं चाह रहे। बोले भाई प्लीज, कोई तो बोलो यार, कोई तो अनम्यूट हो। अनु, अमित, कोई तो अनम्यूट हो प्लीज। मनस्वी आप अनम्यूट। कितने कार्बन है? 2। कितने हो गए? 3। 3, मतलब कार्बन इंक्रीज कर दिए कि नहीं? यस सर। अगर आपको अल्काइल हैलाइड से कार्बन इंक्रीज करके कोई भी कंपाउंड बनाना है तो साइनाइड बनाना पड़ेगा। यानी ये KCl हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया कि KCl कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर देगा। प्रोपेन नाइट्रिल विल बी फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से 3 हो गए। ओके, अब देखो Cn का एप्लीकेशन क्या है। Cn ग्रुप लगा के हम क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं? You are having the C triple bond, ध्यान से देखना साइनाइड ग्रुप। अगर आप साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करोगे ना एसिडिक मीडियम में, what will happen? क्या होगा? 2 molecules of water will be used here। ना दो करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले से पता है आपको, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। हालांकि वाटर के 2 मोल यूज होंगे, और क्या कंपाउंड बनेगा आपके पास? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 4 हाइड्रोजन में से 1 रह गया, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिलके किसका रिमूवल हुआ? अमोनिया का, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यदि साइनाइड ग्रुप कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, वाटर के साथ रिएक्शन ये हाइड्रोलिसिस हो गया, तो साइनाइड ग्रुप का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर साइनाइड का आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे H2O in presence of OH negative basic medium में, तो बनेगा C double bond O single bond O NH2, यानी अमाइड ग्रुप बनेगा। मैकेनिज्म करेंगे आगे डिटेल में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। अब दिमाग में रख लो, इस साइनाइड का क्या नाम है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड। ठीक है भाई।
इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम जाएं, अगर हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें H नेगेटिव, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बजाय आप H2 गैस भी डाल सकते हो प्लेटिनम की पर्चेस में, तो H2 गैस डालेंगे प्लेटिनम की पर्चेस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। अगर एक पाई बॉन्ड होता तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ, दो एटम, लेकिन दो पाई बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो यहाँ पर, और ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और यस, अमीन्स बन गए। कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2 presence of platinum, कंप्लीट रिडक्शन अमीन्स विल बी फॉर्म। और अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे HCl की प्रेजेंस में, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं? टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, व्हाट विल हैपन? देखना, SnCl2 बनेगा, HCl के 2 मोल रिएक्ट करेंगे और HCl के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, और ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये इमाइन बना, CH डबल बॉन्ड NH इज नोन एज व्हाट? इमाइन। और ये इमाइन जो बना, इसका फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो NH और H2 मिलके देयर विल बी द लॉस ऑफ अमोनिया, और ये बन जाएगा CH2O, यानी दिस कंपाउंड विल बी नोन एज व्हाट? एल्डिहाइड। 4 कंपाउंड बना दिए हमने साइनाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एल्डिहाइड और अमीन्स। देख पा रहे हो? सर ये एल्डिहाइड दोबारा बता दो। देखो ये क्लियर हुआ, 3 डालेंगे HCl की प्रेजेंस में, तो HCl के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक यहाँ पर। देखो इधर कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। 3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl कैसा रिडक्शन हो रहा है? पार्शियल। और इसको पता है स्पेशली क्या बोलेंगे? स्टीफन्स रिडक्शन। This is known as Stephen's reduction. यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। और फिर वाटर डालेंगे तो NH और 2 हाइड्रोजन मिलके देखो अमोनिया का लॉस हो रहा है, और CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। ठीक है ना? देखो मैं अगर आपको यूं रिप्रेजेंट करूं कि CH डबल बॉन्ड NH और वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, तो वाटर का जो OH नेगेटिव है ना, वो इस कार्बन पे अटैक करता है जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो देखो आपके पास बन गया CH सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव, और ये बन गया आपके पास OH। बोलो, वाटर के OH नेगेटिव ने इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर दिया जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ देखो, और अब देखो ये यहाँ पे और ये, तो बन गया यार CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप बन गया कि नहीं बताओ? और अमोनिया का ग्रुप। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? तो एल्डिहाइड बनेंगे। पास देखो एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? साइनाइड से पहले पार्शियल रिडक्शन करेंगे, स्टीफन्स रिडक्शन, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के 2 हटा तो चाहिए, मीडियम बदल गए, एसिडिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेसिक है तो फिर अमाइड पे ही हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड, और इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम अल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3 CH2 और Br ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द CN और KBr करेंगे। आपको सीधे रिएक्शंस याद नहीं करनी है, आपको एप्लीकेशंस यूज करनी है। मतलब इस कंपाउंड को इसमें बदल के फिर क्या बना सकते हैं, एक वाइड कांसेप्ट को स्टडी करना है। यूं नहीं कि भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस ये डालेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा नहीं। ये तो जो हम कर रहे हैं, जो रिएक्शंस, उससे तो हमें रिएजेंट्स याद हो रहे हैं कि भाई ये रिएजेंट डालने से क्या बनेगा। ये आपके पास प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी इंक्रीज्ड।
तो इसीलिए अल्काइल हैलाइड में कार्बन इंक्रीज करके अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो साइनाइड कर दो। अब देखो आपके पास 4 रिएजेंट हो गए, खुद ही करना अपने आप को भी है तो करते रहो अपने आप। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम क्या बनेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड that will create the complete reduction or tin in presence of HCl. These are the 4 reagents which can convert cyanide into different compounds. ऊपर वाले केस में बताओ क्या बनेगा प्लीज? CH3CH2 और CN किसमें हाइड्रोलाइज होगा बताओ? COOH में। यही ना? क्या साइड प्रोडक्ट रिलीज होगा क्या नहीं होगा उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है, मेन प्रोडक्ट बना के दिखाना। और अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3CH2 and CN group will be converted into C double bond O NH2 अमाइड बनता है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो 2 इस कार्बन पे और 2 नाइट्रोजन और ये आपके पास बन गया CH3CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्रोपेन। अगर आप टिन डालोगे HCl की प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक नाइट्रोजन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NH। इमाइन बनाइए और इमाइन का फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो NH और H2 मिलके दे विल बी द लॉस ऑफ व्हाट NH3 और ये बन गया CH3CH2 CH डबल बॉन्ड ONCH प्रोपेन। कर सकते हो भैया? आ रहा है समझ में? यस सर। इथाइल ब्रोमाइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा देखो। इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड या आयोडाइड, ये तो कुछ भी हो सकता है, टू प्रोपेनल? ये रहा। How can you convert ethyl bromide to propane amide? Clear? And how can you convert ethyl bromide to प्रोपेनामीन? ये प्रोपेनामीन हो गया। तो कार्बन इंक्रीज करके ये 4 टाइप के कंपाउंड बना सकते हो आप अल्काइल हैलाइड से। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? मिटाए? Yes, sir. यस सर। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है टोल्यूइन और टोल्यूइन में अगर हम NBS डालेंगे N ब्रोमोसक्सिनामाइड, आप में से कोई भी बताए मुझे क्या बनेगा? अब पता लगेगा कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। टोल्यूइन ट्रीटेड विद NBS, व्हाट विल हैपन? क्या बनेगा? NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, प्लीज बताओ। N ब्रोमोसक्सिनामाइड बताओ प्लीज क्या बनेगा? ग्रुप लग जाएगा सर। ब्रोमीन लग जाएगा। कौन सा ग्रुप लगेगा? ब्रोमीन। Br कहां पे? इस कार्बन पे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। NBr NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड्स एलाइनिक पोजीशन पर Br लगाने के लिए होता है और ये एलाइनिक पोजीशन ही हो गया ये कार्बन यार। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस H की जगह Br लगेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेंजाइल ब्रोमीन, बेंजीन CH2Br। क्लियर है? अगर हम इस कंपाउंड के अंदर एक्वस KOH डाल देंगे क्या बनेगा? बेंजीन CH2 और Br की जगह OH।
कॉमन नेम बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया इसका। आईयूपीएस नेम तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन हुआ कि नहीं, इट्स 1 फिनाइल मीथेनॉल, बट कॉमन नेम benzyl bromide and that will be commonly known as benzyl alcohol. अगर हम इस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 in presence of acidic medium, कैन यू टेल क्या बनेगा? What will happen? क्या बनेगा बताओ? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, प्लीज बोलो भाई, अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH2OH क्या बन जाएगा? COH, बेंजोइक एसिड बन गया। तो देखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हो गया, हाउ कैन यू कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजोइक एसिड, ये स्टेप्स हो गए। यहां पर आपको A दे दिया जाए, B दे दिया जाए, क्या बनेगा? बिल्कुल बना सकते, ठीक है। और इसी कंपाउंड में अगर आप PCC डाल दोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन और CH2OH पार्शियल ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक बन गया। ये जो कंपाउंड हो गया दैट विल बी द बेंजोइक एसिड एंड दिस कंपाउंड विल बी बेंजोइक। ओके, दूसरी तरफ से मान लो ये कंपाउंड है CH3B CH2Br बन गया। अगर मैं इसमें KCl डाल देता हूं, अल्कोहलिक KCl, तो Cl को Br की जगह लगेगा कि नहीं? और बेंजीन CH2Cl। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, तो Cl ग्रुप विल बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू CH। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, It's 1 2, यानी ये कंपाउंड बना 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, ये एसिडिक एसिड बन गया। ठीक है भाई, आ रहे हैं समझ में? For example, you are having compound CH3, CH2, double bond CH, single bond CH3. The compound will be known as propene. और प्रोपीन में फिर से NPS डाल दें तो भी Br रेडिकल लगेगा। अलाइनिक पोजीशन पर हो रहा है, अलाइनिक पोजीशन हो गई ये कार्बन। सब्स्टिट्यूशन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही होगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अगर हम इस कंपाउंड के अंदर एक्वस KOH डाल देंगे तो Br ग्रुप की जगह लग जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एलाइल अल्कोहल बन गया। ये जो कंपाउंड बना दैट विल बी नोन एज एलाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम एलाइल ग्रुप है ये। और अगर हम इसी कंपाउंड के अंदर अल्कोहलिक KCl डाल देंगे तो Br ग्रुप की जगह Cn और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cn। कार्बन एटम 3 थे, यहां पर कुल 4 हो गए। It's 1 2 3 4 ब्यूट 3 in 1 night। और आगे कर ही सकते हो, ठीक है भाई। सो दो रिएक्शंस हो गई आपके पास, रिएक्शन विद एक्वस KOH and second you have treated about the reaction with alcoholic KCl या aqueous KCl। third we shall discuss about reaction with AgCl। सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? you know RCH2OH sorry Br ethyl so alkyl bromide is there और इसको अगर हम AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl ले लें तो सिल्वर और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो तो होती नहीं अल्काइल मेटल की तरह, पोटेशियम या सोडियम की तरह। तो यहां पर जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
और सिल्वर और कार्बन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट भी नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो क्लीवेज बिटवीन सिल्वर एंड कार्बन, तो फिर ये कार्बन अटैक करने के लिए फ्री ही नहीं होता। इसलिए बताओ Br कौन अटैक करे? कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, कार्बन पे तो है नहीं, लोन पे तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन हैज टू, और नाइट्रोजन अटैक करेगा, इसलिए कंपाउंड बनेगा RCH2NC, आइसोसाइनाइड बनेगा। और Ag पॉजिटिव और Br लिक्विड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ व्हाट? Ag। व्हाइट क्या नाम, येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। दिस कंपाउंड विल बी नोन एज एल्काइल आइसोसाइनाइड। मैकेनिज्म स्टडी करें हम इसका स्पेशली। What should be the mechanism? How the reaction will take place? We can say you are having RX alkyl halide and it is treated with AgCl, AgC triple bond. So undergo dissociation. So when X group will withdraw the electron, nitrogen has to attack by its lone pair of electron. और क्या कंपाउंड बना आपके पास? देखो Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और R के साथ बॉन्ड बना दिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो दैट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज। X नेगेटिव तो बाहर है, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई इसमें। So now the nitrogen will attain the positive charge। अब देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा? इस ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये अब आपके पास बना AgC डबल बॉन्ड N and this will be the lone pair। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अब देखो कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिल्वर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब करेगा मेटल से इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में तो क्लीवेज ही नहीं हो रहा सिल्वर और कार्बन के बीच के बॉन्ड का। क्लीवेज कब होता है? जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, then to reduce its positive charge it will withdraw electron from the silver and there will be the formation of C double bond N and this is R, lone pair of electron। ये दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गए तो लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को मिल गया और Ag पॉजिटिव। तो Ag पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके AgX बना देंगे। लेकिन देखो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 और 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। सो टू कंप्लीट द ऑक्टेट नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन, H2 बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड N R and there will be the formation of H2 lone pair of electron like that। Yes, this is the compound that is known as alkyl isocyanate। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया तो प्लीज भाई थंब इंप्रेशन दो अपना। It's the mechanism of this reaction। दोबारा समझाओ क्या है समझ में? सर आ गया। आ गया? देखो बहुत यहाँ पर Cl क्यों नहीं लगता, Mc क्यों बना? रीजन ये हुआ क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। So we can say in case of AgCN there is a covalent bond between silver and carbon, so does not dissociate to give Ag positive and Cl negative। Hence, carbon atom is not free to attack। तो कार्बन फ्री नहीं अटैक करने के लिए, and therefore nitrogen atom has to attack। तो नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है। वेरी सिंपल कांसेप्ट, नाइट्रोजन विल अटैक बाय its lone pair of electron on the R, बॉन्ड बन गया, लोन पेयर डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, अपने पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये सिल्वर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये बन गया R N डबल बॉन्ड।
but octet of carbon is not complete. So nitrogen will donate its lone pair of electron and there will be the formation of active. तो आइसोसाइनाइड में तो यही होता है कि दो कोवेलेंट बॉन्ड और एक एक्टिव बॉन्ड हो गया, जबकि साइनाइड में तीनों के तीनों कोवेलेंट बॉन्ड। So example अगर स्टडी करें हम, for example you are having CH3 CH2 Br ethyl bromide और इथाइल ब्रोमाइड के अंदर AgCl डाल दें अगर हम एक्वस सॉल्यूशन, तो क्लियर है कि सिल्वर और कार्बन को क्या नाम है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो बनेंगे ही नहीं। Br इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, Cl अटैक करके बना देगा CH3 CH2 Cl प्रोपेनाइट, सॉरी क्या बनेगा NC नॉट Cl NC। और नंबरिंग करोगे इसी कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन के बीच में यहां पर नाइट्रोजन आ गया और तो फर्स्ट कार्बन ये दैट इज ईथेन आइसोनाइट्रेट, कॉमनली वी कैन से आइसोसाइनेट, ईथेन आइसोनाइट्रेट बन गया। क्लियर है भाई? So let comparative study अगर हम करें, that you are having साइक्लोहेक्सेन में Cl2 पास कर दो लाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होके 6 में से किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगेगा कि नहीं, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। दिस इज द हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यू आर स्टडीइंग इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यही बनेगा। और जहां पर क्लोरीन लगा वहां से H और Cl मिलके HCl करेंगे, और ये जो कंपाउंड बना अल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्ट करेंगे, the Cl group will be replaced by cyanide like that। और इसके अंदर अगर हम AgCl डाल दे सिल्वर साइनाइड तो फिर NC ग्रुप बन जाएगा like that। क्लियर कॉन्सेप्ट? आईयूपीएसी नेम देखो, ये कार्बन साइक्लोहेक्सेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हुआ साइक्लोहेक्सेन। और अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होता तो नाइट्रिल, लेकिन अब तो इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए कार्बोनाइट्रिल। नोमेनक्लेचर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्रिल बनेगा बिकॉज़ कार्बन ऑफ साइनाइड इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द पेरेंट चेन, और ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और इसका सफिक्स तो आइसोनाइट्रिल ही रहेगा कि नहीं? सर कुछ दिख ही नहीं रहा सर। सर वीडियो बंद हो बोलो। वीडियो बंद हो गई सर। वीडियो बंद हो गई है, एक मिनट। अब आ रही है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्रिल बनेगा और यहाँ पर बना साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्रिल। कंपैरेटिव स्टडी हो गया KCl के बीच में और AgCl के बीच में, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कंपैरेटिव स्टडी। तो 3 रिएजेंट हो गए बेटा, NaOH अल्कोहल बनेंगे, KCl साइनाइड्स बनेंगे, AgCl आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। क्लियर? फिर से हो गई सर। एक फोन आ रहा है बेटा, एक मिनट बार ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएजेंट हो गए KNO2 AgNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। These are the two reagents, alkyl halide को पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एक्चुअली नाइट्राइट का स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए पहले। KNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो हुआ ये कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। This is potassium nitrate and this is silver nitrate। बताओ ये बॉन्ड आयोनिक है कि ये बॉन्ड आयोनिक है? अनम्यूट करो अपने आप को। के और आयनिक है। ये है आयनिक क्योंकि पोटेशियम क्या है, एनर्जी लोवेस्ट एल्कली मेटल, तो इसलिए वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K पॉजिटिव
प्लस O नेगेटिव NO में डिसोसिएट हो जाएगा कि नहीं। दिस ऑक्सीजन इज फ्री टू अटैक, तो इसलिए यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा, यानी RH को अगर आप पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करोगे तो PnO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। सो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव NO। क्लियर है? और X इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव विल अटैक किया, तो ये बनेगा RON डबल बॉन्ड एल्काइल नाइट्रेट। क्लियर है? ये बॉन्ड कोवेलेंट है कि नहीं बताओ? तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, ऑक्सीजन फ्री नहीं अटैक करने के लिए नाइट्रोजन में अटैक करना पड़ेगा, यानी RH AgONO, this oxygen is not free to attack, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण, तो X इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो N अटैक करेगा, और ये कंपाउंड बनेगा RnO2। यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहां पर नाइट्रोजन का, तो ये कंपाउंड हुआ नाइट्रोएल्कीन। क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। यस सर। नाइट्राइट टू एल्केन बना यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है इसको नाइट्राइट ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो ये नाइट्राइटो ग्रुप है, ये नाइट्राइटो एल्केन बना और वो नाइट्रो एल्केन बना। मैग्नीशियम करते हैं कल, आज के लिए इतना ही करते हैं। इट्स ऑल फॉर दिस डे, ठीक है भाई? क्लियर है? यस सर। आगे का वीडियो Yes, sir. डालूंगा मैं इसमें, वो भी आप आज ही देखना, और फिर नेक्स्ट जो जूम क्लास आएगी परसों उसमें हम फिर उससे आगे का करेंगे, ठीक है बेटा? बहुत है आज के लिए। 1 मिनट, सोनू सोनू ओवर कर दे। ठीक है सोनू, हाँ सर। बाय सर। ओवर कर देना। ओके सर। ओके।